Hi guys, welcome back to my channel, and today we will learn a poem that is A Little Turtle. So, let's start reading this poem. Say the poem aloud with actions. I am a turtle. I am a little turtle. I crawl so slow. I carry my house wherever I go. When I get tired, I put in my head, my legs and my tail and I go to bed. I am a little turtle मतलब मैं एक छोटा सा turtle हूँ. I crawl so slow. मैं बहुत धीरे चलता हूँ. I carry my house wherever I go का मतलब है मैं जहाँ भी जाता हूँ अपना घर अपने साथ लेके जाता हूँ. Because जो turtle होते हैं वो अपने हेड को अंदर कर सकते हैं, अपने आर्म्स और अपनी लेग्स को अंदर कर सकते हैं अपने शेल में. ओके, so next is when I get tired, जब मैं थक जाता हूँ, I put in my head, मैं अपने हेड को, my legs and my tail, मेरे पैरों को और मेरी पूंछ को, and I go to bed, और मैं अपने बेड में चला जाता हूँ, अपने घर में जाके अपने बेड पे चला जाता हूँ. Next is new words. So next let's start new words with new meanings. So words carry, अपने साथ किसी चीज को ले जाना. Crawl, घुटनों के बल चलना. Tired, थक जाना. Turtle, एक छोटा सा जानवर जो कि पानी और लैंड पे दोनों पे चल सकते हैं. अब इनकी इंग्लिश में मीनिंग कैरी, टू बंडल विद अस इन अ टूल. क्रॉल, टू वॉक ऑन knees. Tired, to get rid of any work. Turtle, a small animal that can live in water and on land as a reptile. Let's read. A baby crawls. बच्चा घुटू के बल चल रहा है. A turtle has a shell. एक turtle के पास shell होते हैं. It has also one meaning that is, so the meaning is a turtle has a house, has a shell as his house. एक टर्टल के पास एक शेल होता है जो कि उसके घर का काम करता है. So next is reading is fun. So let's start reading is fun. How does a turtle walk? एक टर्टल कैसे चलता है? Turtles walk slowly. What does the turtle carry on its back? Turtle अपनी बैक पे क्या कैरी करता है? The turtle carry his house as a shell on its back. Where does the turtle go when it is tired? The turtle go inside his shell when it goes tired or it goes rid of the work. या फिर the turtle go in the shell or in his house when it is tired. Now we are with let's talk. So we are going to talk about what is a turtle's house called. Turtle का घर क्या कहलाता है? Turtle's house is known as, the answer is turtle's shell या फिर only shell, तो आप इसको लिख सकते हैं. So this is the answer of the first question. What is a turtle's house? So a turtle's house
So इसका आंसर आपको लिखना है turtle shell, turtles का shell. So this answer is an NCRT answer. So this may give you a chance to get the answer right. So the next answer here is, so it is, what other reasons can you give for a turtle going into its house? The other reason that I can give so that a turtle should go into its house is that someone can pluck a stone or a rock and put it or push it on a turtle's back. And one more is that it may protect it from enemies, and the other reason is someone may throw a stone or a rock on its back. So next question is, say aloud, जोर से बोलो, circle fire cat kick quack. We had to say their aloud words. Circle purple turtle, fire liar tire. In this, tired should not be there. It should be tire because fire. One minute. Tire has two spellings, that is tire and tire. So I had written this one first. So both the spellings are correct, but their meanings are different. That I will tell you in the grammar videos. So I will be turning it off. And guys, we were on. So यहाँ पे आप अपने D को कट कर लीजिए because D is not here in it. Cat caught cup. This is matching fully, but caught is not that, cup is not that. But because of one thing they are matching, that is C. So this is a right thing. Next is kick, king, kit. In this, kick and kit are fully matching, and king and kick are that's why matching because K I C K kick and K I N G king. So this is the reason. K I, the other thing is here quack quick queen. So quack quick are matching. Queen is because of Q U. So the this the exercise is done here, and next is let's share that we will not do. In this, I will only tell you not doing this right now. Here you had to do brown color, and here we are green color. So as shown here, आपको ये ड्राइंग करनी है. यहाँ पे आपको जैसे दिया गया है सेम आप वैसे ही ड्राइंग करेंगे बिकॉज ब्राउन एंड ग्रीन. सो इसी टाइप से आपको ड्राइंग करनी है. कलर आपका राइट प्रॉपर होगा जब आप वहां जैसा करेंगे. नेक्स्ट इज लेट्स रीड एंड राइट. सो in this I will not tell you, but the main thing is here is I will give you some handwriting tips. So let's start. So with this we are here. So guys, the main reason of handwriting badness is, what is the main mistake of us? हम क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं जिससे हमारी हैंडराइटिंग
बैड होती है, दैट इज ओवर राइटिंग स्पेशली एंड अप राइटिंग। सम टिप्स है, जैसे आप लोग जी बनाते हैं तो कैपिटल जी कुछ का ऐसे बनता है, कुछ का ऐसे बनता है एंड कुछ बच्चों का ऐसे बनता है, तो कुछ बच्चों का तो बनता है तो ऐसे बनता है कैपिटल। सो दिस ऑल इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग जी। यहाँ पे आपको बनाना है सी और यहाँ पे ले आना, बस आपका जी बन चुका है। जी में यहाँ पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बनाना है तो आप ऐसे बनाइए, उसके बाद लाइन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा जी बनेगा और प्रॉपर लगेगा। दैट इज लुकिंग गुड एंड व्हाट इज दिस, ये अच्छा लगता है, नो दैट इज नॉट राइट। यहाँ पे ऐसा लगा है किसी ने सी बनाया और आर बना दिया है बिना गैप छोड़े। सो इस टाइप से नहीं बनाना चाहिए। ओवर राइटिंग इज ऑल्सो गुड थिंग, जैसे कि मान लीजिए मैंने बनाया है ए, मैं फिर किसी को हैंड राइटिंग अच्छी नहीं बोला, ओवर राइटिंग करके अच्छा बनाओ, आप लोगों ने क्या किया, ऐसे कर दिया ओवर राइटिंग। आपने पेन से लिखा है, फिर से किसी ने बोला ये गंदा बना है, तो आपने कर दिए फिर से ओवर राइटिंग, और गंदा गंदा बनता जाएगा, बट आपकी हैंड राइटिंग में कोई सुधार नहीं आने वाला। And next is, so the thing is to give the, फिर यहाँ पे आपको कैसे लिखना चाहिए, यहाँ पे ए को लिखने का तरीका ये है, नीचे से ले जाइए ऊपर तक ले जाइए, फिर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक ले जाइए, फिर ऐसे करिए। अब कर्सिव में आपको क्या करना है, ऐसे लीजिए, ये लिखिया, ये कर दिया, या फिर आपको ये करना है, ऐसे कर दिया। सो ये आपका हैंड राइटिंग का राइट तरीका है। ए बनाने के लिए आप इस टाइप से कर सकते हैं, जैसे इसमें आपको ज्यादा कठिनाई होगी। सो नेक्स्ट इज बी। बी में आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं, ओवर राइटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं और कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, तो ये गलत तरीका है। यहाँ पे आपका स्लैंटिंग जा रहा है, यहाँ पे आपका ये टेढ़ा जा रहा है, यहाँ पे आपका गैपिंग जा रही है, सब में दिक्कत है। आप लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, दो तीन तरीकों से लिख सकते हैं, दैट आर दिस दिस। सो इन दिस व्हाट हैपेंड कि आपका ये यहाँ पे सीधा गया, बट यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है, तो इसको भी हम गलती को ठीक करेंगे, दैट इज दिस। आप इन तीनों टाइप से लिख सकते हैं, दीज आर द राइट थिंग। इसमें आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं आने वाली है, इससे आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी। एंड बी में जैसे हमें कभी लिखना होता है बाय, तो क्या लिख सकते हैं, बाय लुकिंग गुड, या फिर आपको जरूरी नहीं है कि हम कर्सिव में लिखें, अलग अलग करके भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। कर्सिव में कभी कभार ऐसी चीजें चलती हैं। दिस इज लुकिंग गुड, जैसे हम कभी कभार लिख देते हैं जल्दीबाजी में कि क्या करना है, सुंदर बना के ऐसे कर डाला, सो दिस इज रॉन्ग। आपको कभी भी ऐसे नहीं लिखना चाहिए, दिस इज द राइट वे। बी भी हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड सी इज वेरी इजी, तो यहाँ पे हो गया, कर्सिव में बहुत इजी है, इस टाइप से हो गया, स्मॉल सी भी इसी टाइप से बनता है एंड स्मॉल ए भी बहुत इजी होता है, दैट इज लाइक दिस। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक छोटा सा गोला बनाना है एंड यहाँ पे इस टाइप से कर देना। डी इज ऑल्सो इजी, या तो ऐसे कीजिए या फिर ऐसे कीजिए। नेक्स्ट इज डी। डी इज ऑल्सो वेरी इजी, डी बहुत इजी है, इस टाइप से बना सकते हैं या फिर सिंपल सादा। एंड डी का स्मॉल वाला ऐसे ही बन सकता है एंड वन मोर वे इज दैट इज
डी का कुछ उल्टा भी लग रहा है, तो इसका भी इलाज है। भी लग रहा है, सो राइट इज, ऐसे कीजिए। 1 मिनट। ओ ओ, एन एरर वेंट एंड बन गया डी। तो इस टाइप से आपका नॉर्मल डी बनता है। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा कर्सिव करने के लिए आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो। दिस इज लुकिंग गुड, नॉट लाइक दिस कि ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो इस टाइप से बहुत गंदी हैंडराइटिंग आती है। डी इज ऑल्सो ओवर। नेक्स्ट इज ई। ई का आपका नॉर्मल ई ऐसे बनता है, कर्सिव में ई ऐसे बनता है, स्मॉल ई ऐसे बनता है। अगर आपको कंप्यूटर राइटिंग के हिसाब से देखना है तो आपका ई ऐसे बनेगा, या फिर आपका डबल लाइन बॉन्डेड में इस टाइप से बनता है कुछ। ये आपकी डबल लाइन बॉन्डेड कॉपी है, उसमें आप इस टाइप से कर सकते हैं। इजी बनेगा, गुड लुकिंग बनेगा। ये बन गई। एंड नेक्स्ट इज एफ। एफ नॉर्मल एफ ऐसे बनता है। थोड़ा डिजाइनर बनाना है तो आप इस टाइप का बना सकते हैं, दैट वुड बी लाइक दिस, या फिर लाइक दिस। एंड स्टाइलिश एफ बनाना है इन कर्सिव, सो दैट इज लाइक दिस with this handwriting comparison is over। and F को आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ये भी सही तरीका है एंड ये भी सही तरीका है। 1 मिनट। तो इस टाइप से आपका बन जाएगा F। तो इसी के साथ हमारा F भी सही है एंड ये F बहुत कंप्लीट हो चुका है। एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग और भी अल्फाबेट्स कंप्लीट करेंगे, दैट आर G H I J K L M N O P Q R S T U V W X। तो ये भी अभी बहुत सारे X Y Z, तो बहुत सारे हैं। अभी भी हमारे पास 20 अल्फाबेट्स बाकी हैं, वो भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। राइटिंग कंपटीशन तो हमारा चलता रहेगा, कंपैरिजन भी बहुत अच्छे से चलेगा। एंड टेल मी इन द कमेंट्स कि आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में कौन सी न्यू थिंग इम्पोर्टेंट लगी है। ये न्यू चैप्टर है हमारा एकदम, तो इस न्यू चैप्टर में आपको क्या चीज समझ में नहीं आई वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगी। कि आपकी कंफ्यूजन में अगर राइट नहीं होगा वे तो दैट्स नॉट गुड। एंड with this we had completed our today's chapter, that was a little turtle। so guys, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, एंड कमेंट से बता सकते हैं एंड मैं आपको रिप्लाई में आंसर बता दूंगी कि आप किस टाइप से कर सकते हैं। So thank you guys for watching this video, and for today's video we had learned very much things। So thank you guys for watching this video, thank you and bye bye।